Okay. Good morning, student. Today I will discuss about the sum question which have you asked in the last classes. So first of all, I am discussing about the question number 12. For that we have to find the maximum and minimum value of the function in the interval 0 to 2 pi. So how can we find this one? First you know that what the process about this one. First you have to find out the first derivative in this way, x plus sine 2x, that first derivative x1 and derivative of sine 2x 2 cos 2x, 2 cos 2x. Okay, now for that one, for critical points we need first derivative equal to 0, 1 plus cos 2x equal to 0, cos 2x equal to minus 1 by 2, that is minus cos pi by 3. The minus cos pi by 3 we convert into cos 2 pi by 3. You know, conversion you have studied in the previous class, 11th class you have studied. So just convert this minus in the second coordinate, then you convert by pi minus pi by 3. Okay, so now f dash x, I already sent you notes, so you can compare with this one. I am giving just shortly you. So cos 2x equal to cos 2 pi by 3. You know that you have studied about the formula that cos theta equal to cos alpha, then theta equal to minus 2n pi plus minus alpha. General solution for theta in the 11th class. You also general solution of trigonometrical function cos theta equal to cos alpha and theta equal to 2n pi plus minus alpha. Okay, so according to that rule, well, n belongs to z, n is the, so cos theta equal to cos alpha and theta equal to 2n pi plus minus alpha. Here theta, in place of theta there is 2x, in place of alpha there is value 2 pi by 3, so 2n pi plus minus alpha, so n belongs to z. Okay, so 2x equal to this one, then x equal to, you can do by transpose, by dividing the two both sides you can get x equal to n pi plus minus pi by 3, since x belong to 0 to 2 pi. क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, 0 से 2 पाई. 0 भी इंक्लूड करना है और 2 पाई को भी इंक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स यू कैन से. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द all solution in the interval according to the interval, according to the domain of this function. So when n equal to 0, then x equal to pi by 3, x belong to, because since x belong to 0 to 2 pi, and put n equal to 0, this will become 0, that will plus minus pi by 3, minus will cannot be taken according to the domain, so we need only a greater than 0, less than 2 pi, only plus pi by 3 is the value, x equal to plus pi by 3, since x belong to 0 to 2 pi. Similarly, when n equal to 1, then x equal to n, and in place of n put the value 1 here. So 1, what do you mean, pi plus minus pi by 3. So x equal to pi plus minus pi by 3, that is become, if we take in the positive, if we take the positive, that will become 4 pi by 3. If we take negative, that will come in 2 pi by 3. Okay, these two both values lie in between this interval, so these two will be considered. Now when n equal to 2, then the value of x 2 pi, when equal to 2, put the value of n equal to 2, then will be 2 pi plus minus pi by 3, that is x will be 5 pi by 3. Okay, negative cannot be taken since our domain is 0 to 2 pi, so negative will not be considered, only the for positive. Positive cannot be considered, that is greater than 2 pi, that will come in 7 pi by 3. If we take the positive, that will come in 7 pi by 3. 7 pi by 3 cannot be considered in the domain, so we will take only the negative 2 pi minus pi by 3, that will come 5 pi by 3. Okay, since x belong to 0 to 2 pi. So critical points are, so what the value, critical point are also this one, end points including 0 to 2 pi and between this. So first is the 0, second one the pi by 3, then 4 pi by 3, 2 pi by 3 or 4 pi by 3, then 5 pi by 3, and the last 2 pi, 0 to 2 pi, all these are in between the interval. So now for all x belong to 0 to 2 pi, find out the value of the function f of 0 equal to 0. F of pi by 3, put the value f of pi by 3, what will the
pi by 3 then sin 2 pi by 3, pi by 3 plus sin 2 pi by 3 can be written in the form of sin pi by 3 also. ठीक है, pi by 3 minus pi by 3, you can consider pi minus, convert it into pi minus pi by 3, that is the positive sin pi by 3. So value of put this one, value of sin pi by 3 root 3 by 2. Now similarly the value of 2 pi by 3, they consider 2 into 2 pi by 3, and the 4 pi by 3, 4 pi by 3 can be converted into this one, pi plus pi by 3, that will come into minus root 3 by 2, 2 pi by 3 minus root 3 by 2. Similarly in place we put 4 pi by 3, value of the 4 pi value of the function, 4 pi by 3 sin 2 into 4 by 3, that will come 4 pi by 3 plus sin 8 pi by 3, convert it to the in this form sin 3 pi by minus pi by 3, that is also 8 pi by 3, 3 pi by minus, that is the third quadrant, it will be second quadrant, 3 pi minus pi by 3, second quadrant will be positive, sin pi by 3, that will come in the sin pi by 3, that will be positive. Similarly f of 5 pi by 3, that will convert into this one, and the 5 pi by 3, convert 10 pi by 3 will come, convert 10 pi by 3, 3 pi plus pi by 3, that will the another third quadrant will come. Third is there is negative sign, minus sin pi by 3, that will come. So at last end point 2 pi, the value of the function 2 pi plus sin 2 pi, that is 0, 2 pi plus 0, that is 2 pi. You can observe that, say these are minimum value is the 0 and the all are minimum value is 0, and the value of remaining these are less than 2 pi. You can see that 2 pi by 3, 4 pi by 3 all are less than 2 pi. So maximum value will be 2 pi. So in between the interval 0 to 2 pi, minimum value is 0 and the maximum value 2 pi at 2 pi. Is that clear? Okay, this is about the question number 12. Now come to the next question. Okay, so that is the question number 14. We have given this so x plus y equal to 16, xy cube is maximum. There are given two numbers such that their sum is 60 and function will be maximum. So you have to find out these two numbers x and y. How can we find? Whenever you have given the function, you have to reduce the function in the single variable. If you given more than one variable, you can observe there is two variable. You have to reduce these two variable. You have to reduce the function in single variable. For that we have given this one. We have to use this one to convert this function into single variable. जब भी आपको दो वेरिएबल में कोई फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमारे इजी आते हैं और डिफरेंशिएशन भी सिंगल वेरिएबल में होगा तो वो हमारे लिए इजी होगा. सो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं. y इक्वल टू 60 माइनस एक्स, और ये फंक्शन मान लेते हैं हम एफ एक्स. लेट फंक्शन इज द एक्स वाई क्यूब. अब यहाँ देयर आर टू वेरिएबल्स, वी हैव टू रिमूव वन वेरिएबल और रिड्यूस दिस वन. एक्स इन प्लेस ऑफ y वी पुट द वैल्यू दिस वन, द फंक्शन विल बी कन्वर्ट. यू कैन ऑब्जर्व पूरा फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में आ गया है. अब इसका हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, फॉर मैक्सिमा मिनिमा वट एवर भी गिवन. सो मैक्सिमा के लिए हम एफ डैश एक्स क्या करते हैं, हम 0 60 माइनस एक्स क्यूब. अब ये एफ डैश एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. सो एफ डैश एक्स विल बी, यार इसका एफ डैश निकालेंगे हम. तो फर्स्ट एज एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव यू डैश वी प्लस यू वी डैश, उसके अकॉर्डिंग रूल से हम ये डिफरेंशिएट किया. ओके, वन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 एंड दिस वन एज इट इज, then again x as it is, then differentiation of second one. So x already given, 3 will come here and 60 minus n x raised to the power n minus 1 by using this one law. So minus x का फिर से again differentiation होगा minus x का, तो minus 1 हो जाएगा equal to 0. और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अगर हम ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में ये वाला माइनस इधर आ जाएगा. 60 माइनस एक्स का होल, और 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम. 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, टेक द कॉमन 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इन दिस टू टर्म एंड देन द वैल्यू विल कम इन दिस वे, 60 माइनस एक्स एंड दिस विल minus 3x, this will come minus 3x, that will convert into 60 minus 4x equal to 0. So you can observe there, this will equal to 0 and this will equal to 0. Then when this will equal to 0, x equal to 16. When this will equal to 0, then x equal to 15. So these are the two critical points. So for critical points, then we have to find the second derivative for maximum minimum, है ना. इसके लिए हम लोग second derivative find करेंगे. second derivative होगा, first derivative ये आया हमारा, अभी हमने निकाला. सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका 2 इंटू, फिर अगेन u इंटू वी से, ऐसे करेंगे हम u डैश. तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ये आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस
ये एज इट इज रहेगा, ये वाला फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव इसका 0 माइनस 4x, दिस विल 4 माइनस 4 है ना। यू कैन ऑब्जर्व इन दोनों टर्म में व्हाट विल कॉमन, 60 माइनस x विल वी टेक आउटसाइड एंड दिस विल -2 अकॉर्डिंग टू दी, इसका डेफिनेशन 2 इंटू 60 माइनस एक्स का -1 होगा, माइनस हमने यहाँ लगा दिए, अप्लाई किया, 60 माइनस एक्स टेक आउटसाइड, नाउ विल बिकम 60 माइनस 4x प्लस 60 माइनस एक्स, यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस 4x एंड दैट विल बी 60 माइनस एक्स, ओके, इंटू 2, सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ से हो, तो 60 माइनस 4x, 60 माइनस यहाँ पे x होगा, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 माइनस 6x आएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपकी, और सिंप्लीफाई करेंगे -12 कॉमन ले लीजिए 6, तो -12 60 माइनस x और 30 माइनस x, ओके। नाउ वाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, 60 माइनस 15 पे हम चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे 15 हैं, अब इसकी वैल्यू रखेंगे, 15 पर वैल्यू क्या आ गई हमारी नेगेटिव पे डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा, है ना, मालूम है ना इसको। देन इफ द सेकंड डेरिवेटिव देयर इज नेगेटिव देन द फंक्शन विल बी मैक्सिमा एट द पॉइंट x इक्वल टू 15। नाउ आई जस्ट 60 निकालते हैं, we put the 60, you can observe that there will be all 0 will become, if we put 60 that will become 0 and the whole function will be, whole second derivative will be 0, so that is not considerable, okay. So x equal to 15 is the value, first number, then y equal to, then other number using this one, if x equal to 15 then y equal to 60 minus 15, that will 45, hence two number are 15 and 45, okay. Now come to next. Okay, question number 17. The question is given you for 17. So, what is the question is being given you? A square piece of 10 of side 18 cm to be. ठीक है, a square. You have given the square. A square piece of 10 18 cm. एक This is the square piece of tin, the length of this each side is the 18 square, and we have to cut from each corner of a square of length, so that when we convert into a box, if you can see that when we cut this one and cut the each corner from the each corner, so that one, after cutting this one we have to convert the box, open box, we have to convert this one into open box. सो हाउ कैन वी फॉर्म, ये स्क्वायर पीस है 10 का, इसमें से हमने हर एक कॉर्नर से मान लिया हमने क्या x सेंटीमीटर क्या काट दिया, x यूनिट काट दिया, यहाँ से भी x बाई एक्स का स्क्वायर, x बाई एक्स का स्क्वायर इज आल्सो स्क्वायर ऑफ x बाई एक्स, कट द x बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। अब इस काटने के बाद दैट विल कन्वर्ट, ये कट गए हैं, अब इसको हम फोल्ड करेंगे, व्हेन वी फोल्ड द फ्लैप्स और दिस 4 दैट विल बी कन्वर्ट इनटू अ ओपन बॉक्स, दिस वन. So you can observe that. So what will the length of this one when we this one cut and this one also cut? What will the length? X reduced by left side, reduced by right side also. So total length will be 18 minus 2x. Similarly here 18 minus 2x, and the base, that is the length, that is the base, 18 minus 2x also this one, and that height will be according to the cutting. When you fold, this length is x. So when we fold it, that the height will be x. जब उसको हम फोल्ड करेंगे तो आप इसकी हाइट दिखना, इसकी क्या होगी, x होगी। जब उसको जितना कट किया है ना उतना ही फोल्ड होगा ना उसका, जितना साइड उसका कट किया है उतना ही उसका फोल्ड करेंगे उसको, तो जो हाइट आएगी वो x के बराबर ही होगी, दैट इज x. सो लेट x इज द लेंथ ऑफ द टू कट फ्रॉम ईच कॉर्नर, एंड न्यू क्यूबॉइड फॉर्म्स ऑफ लेंथ इक्वल टू 18 माइनस 2x, ब्रेथ इक्वल टू 18 माइनस 2x, h इक्वल टू x. देन द वॉल्यूम विल बी l इंटू b इंटू h. So put the values of LBH, this one, and so volume V equal to x into 18 minus 2x whole square. So we take the 2 common outside, 4x will become, there is the square, when we take 2 it will convert into 4 when I come outside, 4x into 9 minus x whole square. Now for maxima minima we have to find out that the given function is the, we consider that v equal to x into 18 minus 2x whole square, okay, this one 4x into. Now we have to for maxima minima, I already know that v, there is a function of b of x, हम इसको v of x का एक फंक्शन मान लेते हैं, वॉल्यूम में x का फंक्शन है,
तो v ऑफ x इक्वल टू गिवन यू 4x इंटू 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर. सो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट 4 इंटू यू इंटू वी है ना, यू डैश वी, यू कन्वर्ट इंटू यू डैश वी प्लस यू डैश यू वी डैश. अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी डिफरेंशिएट दिस वन है ना. ओके, नाउ विल कन्वर्ट इट यू टू. सो ओके, इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे x का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस एक्स. इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 इंटू 9 माइनस एक्स और माइनस एक्स का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. सो इट विल कम इन -1. ओके, ये तो n को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस एक्स कॉमन, टेक आउटसाइड कॉमन, 9 माइनस एक्स को कॉमन ले लिया हमने बाहर. तो अंदर क्या बचेगा 9 माइनस एक्स और -2x, तो 9 माइनस 3x हो जाएगा. कॉमन लेने के बाद फंक्शन आएगा 4 इंटू 9 माइनस 3x. फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स यू नो दैट वी डैश x इक्वल टू 0, इसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं. तो x इक्वल टू क्या आएगा 9 और x इक्वल टू कितना आएगा 3. इक्वल टू 0 करेंगे, इससे 9 आएगा, इससे 3 आएगा. सो वी डैश x आ गया हमारा कितना 9 माइनस 3 माइनस एक्स. और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से क्या ले रहे हैं 3 कॉमन, तो ये 12 हो जाएगा. 12 इंटू ये आ गया हमारा वी डैश x. तो वी डैश x क्या आएगा ये आएगा. और इसको सिंप्लीफाई कर लिया वी डैश x को 12 पे हमने लिखिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो 27 माइनस दिस 1. सो सेकंड डेरिवेटिव देख लीजिए यहाँ पे. सेकंड डेरिवेटिव ये है 12 इंटू 0, ये मल्टीप्लाई करने पड़े, सिंप्लीफाई करने पड़ जाए. इसका आएगा 0, इसका -12, इसका होगा 2x ना, इसका जाएगा. और इसमें वैल्यू रख दी x इक्वल टू. तो वी डैश x सेकंड डेरिवेटिव आया 12 इंटू 2x माइनस 12, 2 कॉमन ले लीजिए. 24 इंटू x माइनस 10 वैन x इक्वल टू 9. अब आपके पास कितने पॉइंट है, हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स, देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स. वैन x इक्वल टू 9, एक्सट्रीम पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट. वैन x इक्वल टू 9. अब आप देखिए x इक्वल टू अगर 9 आप कंसीडर करते हो, अगर x इक्वल टू क्या है यहाँ 9 रख देते हैं यहाँ पर. इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 देन द वॉल्यूम विल बी 0. ओके, सो वॉल्यूम दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल, वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, v इक्वल टू 0. और जब आप 3 लेते हो तो यहाँ पॉसिबल है, 3 पे पॉसिबल है, तो 3 के लिए चेक करेंगे. नाउ लेट वी when we put the value of x equal to 9 then the volume will become 0, so that is not possible. So when we take the value 3 that will be possible na. According we have to observe also volume of the function na, volume also we have to keep in mind when putting the critical points before put in the second derivative. So that is not possible when when x equal to 9, so not possible. When if x equal to 3 then the second derivative will be -72 less than 0, negative. So negative, add negative, the second derivative, if the second derivative negative then the volume will be maximum at x equal to 3. So the at x equal to 3 the volume will be maximum, so the side of x equal to 3 to be cut from for maximum volume. Clear? Now come to the next question. Okay, next question is 19. It may show, you have to show that of the rectangle inscribed in a given fixed circle, all the rectangle in a given fixed circle, square has the maximum area. Square has the maximum area. So what have you given? It means fixed means you have given the all parameters will be same. So say circle is a circle you given you fixed, and we cannot be change the parameter of circle. We can use the parameter of rectangle, that is inscribed, that is the maximum area. Square has the maximum area for maximum area. So we know that if the let a circle with a radius inscribed in a radius a, that the radius of a inscribed in a rectangle ABCD of length x and the width is y. In triangle ABC, you can observe that in triangle ABC by using the Pythagoras we can find the value of, where we have to remove the convert the into single variable. There is 2 variable x and y. जब भी क्वेश्चन में 2 वैल्यू ले, हमने तो कहा, हमने बताया अभी कि हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है. तो आप देखिए हम x और y मानते हैं, तो हमें y और x में एक रिलेशन चाहिए जिससे हम फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें. तो x और y का रिलेशन कैसे आएगा? बाय यूजिंग द पाइथागोरस. इस ट्रायंगल में देखिए ना, क्योंकि रेक्टेंगल है 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? डायमीटर होगा ऑलवेज ना. सेमी सर्किल ऑलवेज फॉर्म द राइट एंगल. तो राइट एंगल कहाँ फॉर्म होता है? सेमी सर्किल पर. तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर.
ये रेडियस ए, ये तो ये क्या हो जाएगा 2a, ये साइड की लेंथ 2a, दिस x एंड दिस विल बी y। सो इन ट्रायंगल ABC में हमने y की वैल्यू निकाली बाय यूजिंग द पाइथागोरस, y इक्वल टू दिस वन है ना। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2a, BC AC इज द 2a, AB इज द x स्क्वायर, दैट विल अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया शुड बी मैक्सिमम, हमें एरिया चाहिए ना, अदर क्वांटिटी क्या है एरिया, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितनी हमारी x, और हमें सबको एक्स वाई में कन्वर्ट करना है, एक्स वाई में, और y को भी x में कन्वर्ट करना है। एरिया इज गिवन यू a इंटू एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, एंड वी हैव टू रिड्यूस द सिंगल वेरिएबल इन प्लेस ऑफ y, पुट द वैल्यू दिस वन इन हियर, दैट विल बिकम, नाउ दैट इज द फंक्शन ऑफ x। यू कैन ऑब्जर्व दैट a कांस्टेंट है, a इज द कांस्टेंट, x इज द वेरिएबल, so we can differentiate with respect to x. For maxima minima we can assume that is the function of x. For maxima area a, this is the function of x, so a of x equal to given you this one, then a dash x using the product rule है ना, u dash v plus u v dash है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट का 1/2 दिस वन इंटू इसका और डिफरेंशिएशन होगा, इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। ओके, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो देखेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल होंगे, तो माइनस एक्स का एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर, ओके दिस वन एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, एलसीएम आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना है, तो 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन दिस वन इक्वल टू 0, ये सब 0 में जाएगा, तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या x इक्वल टू रूट 2a आएगा ना यहाँ से, दैट इक्वल टू। नाउ आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट वी यूज द सेकंड डेरिवेटिव a डबल डैश x, सो अगेन वी आया बाय कोएफिशिएंट रूल, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन बाय कोएफिशिएंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अभी ना, अभी जैसे अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ किया था ना, यहाँ पे किया था, उसी तरह इसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस वाले का डिफरेंशिएशन ये होगा, तो ये एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन ये 1/2 इंटू दिस वन, और ये अगेन इसका डिफरेंशिएशन होगा तो -2x, ठीक है ना। फिर से हम वैसे ही करेंगे, इसका अपॉन में, और अपॉन ये पूरे का ब्रैकेट लगा हुआ है, पूरे का इंटू अपॉन में क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो जब हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, रिमूव द स्क्वायर रूट, दैट विल ओनली रिमेन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, दिस वन -4x विल बिकम, और दिस वन इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 से 2 यहाँ फिर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, और जब हम एलसीएम, व्हेन वी टेक एलसीएम दिस विल मल्टीप्लाई दिस वन, द स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल आउट एंड दैट विल गो इन डिनोमिनेटर 1/2 और 1 3/2 विल कम, है ना। सो इज द क्वेश्चन इज द पावर ऑफ दिस वन इज 1/2 एंड पावर ऑफ दिस वन इज 1, व्हेन वी गो डाउन साइड दैट विल कम 3/2, 1/2 plus 1 3/2, एंड द न्यूमरेटर विल सिंप्लीफाई दिस वन, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फंक्शन ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमें सिंप्लीफाई करके ये आएगा। सो अब हमें एक फंक्शन मिल गया डेरिवेटिव, अब चेक करना है कि रूट 2 पे मैक्सिमम है कि नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे ओनली क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2a कांस्टेंट वैल्यू है, सो 2a पे चेक करा हमने, इसको हमने वैल्यू पुट करी इसमें फंक्शन में, देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 24 तो 12 रूट 2a क्यूब, और प्लस इसका करेंगे तो 4 रूट a क्यूब, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर 8 रूट 12 में से 4 माइनस करेंगे तो -8 रूट 2a क्यूब, अपॉन में इसका क्यूब करेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2a स्क्वायर आएगा, और 2a स्क्वायर का 3/2 करेंगे, 2 स्क्वायर का पहले स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये 1/2 क्या 3/2 है ना, 4 स्क्वायर को कैसे करेंगे 2a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2a स्क्वायर, देखो 2a स्क्वायर, और क्या बचेगा इसका 3/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग
2a² है ना, इसका पावर 1/2 यहाँ अंदर लगा लेंगे और फिर ऊपर जाएगा क्यूब, तो इसका क्यूब स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, √2a एंड देन क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 2√2a³ आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 2√2a³, इसका आएगा 2√2a³, ओके, इसका आएगा 2√2a³ और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2√2a से √2a³ से √2a³ कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 और माइनस साइन है तो -4 आएगा, हैंस मैक्सिमम एरिया, नेगेटिव लेस देन 0, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, देन द फंक्शन, देन द गिवन फंक्शन विल बी मैक्सिमा ऑन द क्रिटिकल पॉइंट x = 2a, सो एट x = 2a एरिया विल बी मैक्सिमम, जब एरिया x पे मैक्सिमम है और तब उस कंडीशन में सेकंड लेंथ y क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस वन, तो y = कितना होगा 4a² - x², x = √2a रखिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे वो भी √2 आएगा, तो आप देख सकते हैं एरिया मैक्सिमम होगा अगर x और y दोनों इक्वल होंगी, तो इससे प्रूव होता है एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन x and y both are equal to √2a, area will be maximum then y = this one, hence x = y = √2a, then area will be maximum. Is that clear?